Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic, that is fractions. When we talk about fractions, there is one thing that we have a whole part and we divided that whole part into different pieces, just like 2 pieces, 4 pieces, and we will take one piece from that part. So this is called our fraction. Suppose we are having a circle, we have divided this circle into 4 equal parts, clear? So if we talk about these 3 parts out of 4 parts, so we are having 3 by 4 as a fraction. So fraction is working as a some divided part from the whole part, clear? So now we are having some fractions. Okay, let's have a figure just like a circle divided into how many parts each part and light as. So we are having one circle, so part is 1 and return is 1. If we divided this circle into 2 equal parts, clear? So we are having 1/2 and 1 by 2 part. If we divide the circle in 3 equal parts, so we are having 1 by third part and we will write 1 by 3. After this, we are having 4 equal parts in a circle. So this is 1/4 and 1 by 4th part. Next is, if we divide the circle in 5 equal parts, so we are having 1/5 and 1 by 5th. Okay, so यहाँ पर हमने बहुत सारे parts देख लिए. अगर हम 6 parts में divide करते हैं तो 1/6 हो जाएगा. किसी चीज़ को हम 7 parts में divide करते हैं 1/7. ठीक है, तो इसी टाइप से हम यहाँ पर करते रहेंगे. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ये दोनों होते ही क्या है? ये फ्रैक्शन का ही पार्ट होते हैं. अब देखिए, हम यहाँ पे देख लेते हैं. Okay, we know that a fraction has 2 parts, the number above the division line and the number below the division line. अब यहाँ पर हमारे पास आती है term that is numerator. The number which is above the division line is called the numerator and it shows how many of parts have been taken. मतलब जितने parts की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है? And then we are having denominator. The number which is below the division line is called the denominator. It shows into how many equal parts each whole is divided. मतलब that means what figure we are having and we have divided that figure in how many equal parts. So that shows our denominator. Okay, here we are having exercise 10.1. So come to question number A. Shade 1/2 of each of the following figure. 1/2 means we are having 2 equal parts. And in that 2 parts, we have to shade 1 part. Come to question number A, second part. So this circle, here we are having a circle which is divided into 2 equal parts. So we have to shade 1/2, means 1 part out of 2. Clear? So here we are in question number B, shade 1/3 of each of the following figure. So let's take question number 1 from B part. So here 3 equal parts are there, so we have to shade this first part. Clear? Now come to next part. D is shade 1/4 of each of the following figure. So here we are having total 4 parts, so we have to shade 1 part out of 4. So I am shading this part. Next is D part. Shade 3/4 of each of the following. 3/4 means we are having total 4 parts. We have 3 out of them. So we are having 1, 2, 3. Clear? Next we are having E, that is shade 2/5 of the following figure. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास total parts कितने 5 and we have to shade only 2 parts. So let's pick one part is this and second part is this. Clear? Next is question number F. Shade 2/9 part of the following figure. We are having total 9 parts and out of these 9 parts we have to shade only 2 parts. So this is our first part and this is our second part. Clear? Okay. Now come to question number G. Write the following fraction in figures. So here we are having the fraction in words. So this one is our numerator and this 5th is our denominator. Clear? So in this way you have to write it. And come to question number H. Write the following fraction in words. So we are having this is 2,
then dash, and this is 6 is for sixth. Okay, we have to just write them 6, 7, 8, 9, 10, just like this. Okay, now come to exercise 10.2. Here we have to tell that which one is numerator and denominator. Okay, let's pick question number A, second part. And here we are having this division line, and the number above the division line is our numerator. That means 2 is our numerator and 3 is our. Okay, next is question number B. Write fractions of the following numerators and denominators. Okay, so we have to draw the first division line. So numerator is a 12 and denominator is a 30. Clear? Next is equivalent fraction. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं, जस्ट लाइक 1/2 एंड 2/4. अब देखिए दिखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन अगर हम इनकी वैल्यू सॉल्व करें, ठीक है, सॉल्व कैसे, अगर हम यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तो मैं डिवाइड करने के लिए यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, तो देखिए दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, तो दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है बाय सेम नंबर इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, या फिर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं विद द सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो बाय दीज टू मेथड्स वी कैन गेट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, हियर वी हैव important facts about equivalent fractional number. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आता है just like numerator of the first fraction and denominator of the second fraction and is equals to denominator of the first fraction, numerator of the second. Just like here we are having some examples. हम इन दोनों की क्या करें, मल्टीप्लाई करें. अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं that means they are equivalent fractions, otherwise not. Okay, fine. Come to our exercise 10.3. So here we are in question number A. Write the next 5 equivalent fractions. So तो यहाँ पर हमारे पास है 1/3. तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, देन यहाँ पर 3 से करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अब 4 से करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12. अब 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15. देन 6 से करेंगे 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18. 7 से करेंगे 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21. देन 8 से करेंगे 8 1 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24. क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 9 से हमने क्या बना दिया 27. हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करा 3 से, तो यहाँ पर भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30. तो बाकी सब क्वेश्चंस भी इसी टाइप में, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर C, second part. Here we have to put right or wrong against the statement that means they are equivalent or not. So we have to use cross multiply method here, just like this two. So 21 into 4 and 6 into 12. Clear? अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आ जाता है, that means if their product is equal, then they are equivalent fraction. Just like 84 and this is 12 6 72. Clear? So these are different. So we put a cross sign. Okay, next is comparison of fractions. तो फ्रैक्शन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पे देखिएगा अगर न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, या डिनोमिनेटर सेम है, दोनों ही केस हो सकते हैं. तो चलिए देखते हैं 1 by 1. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस जस्ट लाइक फ्रैक्शंस की बात करिए. अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम आते हैं, आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, देन उसके हिसाब से आप साइन प्लॉट करेंगे. क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें, ओके, अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोस फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. क्लियर? सो अब आते हैं कंपैरिजन पर. तो कंपैरिजन करने में आपके पास डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तभी आप उनको कंपेयर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 10.4 एंड क्वेश्चन नंबर A. पुट ग्रेटर देन लेस देन साइन इन बिटवीन ईच पेयर ऑफ फ्रैक्शंस. तो अगर आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो जिसका डिनोमिनेटर, अगर आपके पास न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो आपने देखिए जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी. विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर? दिस वन.
ठीक है। अब एक केस और देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को एज इट इज लेंगे। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो बड़ा ही होगा, अगर छोटा है तो वो छोटा ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी। इन क्वेश्चन नंबर बी, एनसर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन ईच ग्रुप। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर सारे हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस में अच्छी बात होती है सबके डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 5, 7, 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे छोटा क्या हो गया 2, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज एनसर्कल द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो अब इसका अपोजिट कर देना है, तो जो सबसे बड़ा होगा उसको देख लेते हैं। बट यहाँ पर केस क्या है, न्यूमरेटर सेम है। तो हमने बात करी थी जब न्यूमरेटर सेम होंगे तो डिनोमिनेटर में जिसका वैल्यू बड़ा होगा तो उसकी होल वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। और जब डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होगी तो होल वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रैक्शन पे हमें करना है, तो इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर हो गया हमारा आंसर 6/11। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर डी। राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम। अगर हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की तो जो इसमें सीक्वेंस होता है वो होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग में देखेंगे तो लार्जेस्ट क्या है, जस्ट लाइक 7, 8, 11, 30। सो दिस इज 13 इज द लार्जेस्ट। देन इससे छोटा क्या होगा हमारे पास 11/15। देन इससे छोटा क्या होगा हमारे पास 8/15। इससे छोटा क्या होगा हमारे पास 7/15। क्लियर? चल, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे हमें असाइनिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है, तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। अच्छा, एक ही क्वेश्चन हमें दोनों तरीके से करना है। ओके, तो देखिए ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, तो चलिए इसको साइड कर देते हैं। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो वो हो जाता है हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है। अभी यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट है दैट इज 7/15। देन इससे बड़ा कौन होगा 8/15। देन इससे बड़ा क्या होगा 11/15। इससे बड़ा क्या होगा 13/15। क्लियर? चलिए उसके बाद हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एक्सरसाइज 10.5 एंड हियर वी आर हैविंग एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो आपको देखो फ्रैक्शन साइड कर दें, देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि वो होनी चाहिए लाइक फ्रैक्शंस। अगर नहीं है तो उनको चेंज करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ से पिक कर लेते हैं। दिस इज 1/5 एंड 2/5। तो ये हो गया 1 एंड दिस इज 2 पार्ट्स 1 एंड 2। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर 3 आउट ऑफ 5। सो हो जाएगा हमारे पास 3/5। क्लियर? तो आपको इस तरीके से इन सबको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सम करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड। अब देखिए सम करना और भी ज़्यादा अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपके पास तीनों डिनोमिनेटर उसमें क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो दिस विल बिकम 2 + 4 + 1। तो हो जाएगा 7/8 एज आंसर। क्लियर? तो चलिए उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी पर, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। 3 में से क्या ऐड करें जो 8 आ जाए। आप बोलोगे सर 5 ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलिए नाउ वी आर हैविंग डी पार्ट्स ऑल द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन्स। ओके, तो लेट्स पिक सेकंड पार्ट। अब देखिए फर्स्ट है 6/16। तो हम 0 से पहले डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे 6 पर। देन हमें कितना ऐड करना है 5। क्लियर? तो हम 5 स्टेप्स लेंगे अब यहाँ से 1 2 3 4 5। अब यहाँ जाकर रुके तो ये क्या हो गया 11/। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंस के टाइम पर आपको डिनोमिनेटर्स देखने हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और आपके यानी डिफरेंस ऑन नोमिनेटर्स अपॉन
डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पर जैसे हमने एडिशन में करा था सेम वे हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आता है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 10.6 क्वेश्चन नंबर ए, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ से पिक कर लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे आ गया 55 55, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर लेंगे 10 लाइक 55, दिस इज 47 माइनस 11, 7 माइनस 1 इज 6, 4 माइनस 1 इज 3 बाय 55 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन 1। अब देखिए टोटल नंबर कितना है यहाँ पे 15, तो हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे 15 पर, बस लाइक दिस। अब कितने स्टेप्स माइनस करने हैं, 9, कम उतने स्टेप्स बैकवर्ड चलेंगे। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास आंसर क्या आ गया, 6/20। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको हमेशा क्या करना है, लैंग्वेज पर फोकस करना है, फिर वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमें एडिशन सॉल्व करना है या सब्ट्रैक्शन। लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर आते हैं, दैट इज अ शॉपकीपर सोल्ड 7/19, 5/19, 4/19 पार्ट्स ऑफ शुगर इन 3 वीक्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट पोर्शन ऑफ शुगर डिड ही सेल। तो चलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज पोर्शन ऑफ शुगर सोल्ड। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों को ऐड करेंगे, 7/19, 5/19, 4/19। उसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 90 एंड ये हो जाएगा 7 + 5 + 4, दिस इज 9 + 7 इज 16/90 एज आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 4 और ले लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। चलिए यहाँ पर आते हैं, व्हाट शुड बी एडिड इन 12/40 टू गेट 38/40। तो जब भी ऐसा कुछ आता है कि इसमें क्या ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमेशा हमें क्या करना होता है, जो लिखा हो इसका अपोजिट करना होता है। तो देखिए हमारे पास बिगर फ्रैक्शन क्या है 38/40, उसमें से माइनस करेंगे 12/40, तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्व क्या आ जाएगा, जस्ट लाइक 40, 38 minus 12, this is 26/40, this is 13 and this is 20। okay, तो हमारे टॉपिक हो चुका है फिनिश। आई होप यू ऑल हैव cleared your doubts and also learned it properly, and I hope you have to, okay, उसे कट कर देना। okay, thank you so much for listening us carefully, see you in next video and thank you so much।